Hello everyone. I hope everyone is doing good. We are back here with your chapter 5 that is states of matter, right? हमने अभी तक intermolecular forces के बारे में पढ़ा, right? Then we talked about various state of gases and state variables के बारे में पढ़ा. We talked about the ideal gas पढ़ा, Boyle's law, Charles' law, Gay-Lussac's law. So these were the things we were discussing about, ठीक है? अब हम आइडियल गैस इक्वेशन के बारे में थोड़ा सा चलेंगे. काइनेटिक थ्योरी क्या होती है उसके बारे में पढ़ेंगे एंड जस्ट विल ट्राई टू कॉन्सेंट्रेट ऑन योर गैसेज ओनली, राइट? व्हाट इज आइडियल गैस, रियल गैस, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर भी है. लेट्स विल टॉक अबाउट इट. ओके, so we discussed about 20 questions in your last class. We'll try to complete it today, and from next class we're going to start with a new chapter, right? This is a chapter 5, that is states of matter, right? So we are going to discuss your chapter 6 in the next class. So we'll discuss your next chapter 6, that is thermodynamics. Okay, so we'll try to complete it today so we can start with it. ठीक है, we'll do half of it, that is up to chapter 7 we'll try to complete it. फिर chapter 7 के बाद we are going to switch again on your that is बायोलॉजी. ठीक है, हमने हाफ ऑफ द बायोलॉजी कर ली थी. नाउ लेट्स मूव बैक टू दैट. ओके, इट विल बी ईजी फॉर यू. सो आपके लिए भी बोरिंग नहीं होगा एंड आपका भी इंटरेस्ट बना रहे. सो वील गोइंग टू कीप ऑन स्विचिंग, राइट? सो वी हैव देयर अराउंड आई थिंक 14 चैप्टर्स फॉर योर केमिस्ट्री. हम 5th चैप्टर पहुंच चुके हैं एंड नेक्स्ट इज द 6th and 7th चैप्टर. 6th दैट इज थर्मोडाइनमिक्स, राइट? So we are going to complete it in mostly next week and then we'll start with the biology again. हमने उसके बहुत चैप्टर्स कर लिए थे. लेट्स ट्राई टू कंप्लीट इट कि इन बाय मे और जून, एंड मे और जून में यू आर कंप्लीटेड विद इट. ओके, सो वी कैन गो फॉर योर थॉरो क्लासेस अगेन और हम कुछ और डिस्कस कर सकें. ठीक है, सो लेट्स विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट विद योर क्वेश्चन नंबर 21. What is the constant in ideal gas equation known as? A. Universal gas constant, B. Pressure constant, C. Temperature constant और D. Boltzmann constant. What is the constant जो होता है ideal gas equation में, उसको क्या बोला जाता है? So what is your correct answer? Your correct answer is A. Universal gas constant. ठीक है, फर्स्टली यू शुड नो इट. आइडियल गैस जो इक्वेशन है वो बनी है कंबाइन करके सारे लॉज को, कंबाइनिंग ऑल द 3 लॉज जो थे. दैट इज बॉयल्स लॉ जो कहता है कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम. ओके, देन इज द चार्ल्स लॉ देयर वेयर वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. यस, एंड एवोगैड्रोस लॉ विच सेज दैट volume is directly proportional to the amount of gas where n is the amount of gas. ठीक है, जब हम combine करते हैं all these 3 equations को, so what we get an ideal gas equation. क्या मिलती है? ideal gas equation where it says volume is directly proportional to what? amount of gas into temperature, but it is inversely proportional to what? that is pressure. Or when we take it over there, what we get is PV equals to nRT. Okay, so this is the what we get the equation as. This is the ideal gas equation where P is pressure, V is volume, N is the amount of gas. ठीक है, T is temperature and R is your universal gas constant. सो यहाँ पे जो R है दैट इज योर यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट. ओके, जो वैल्यू ऑफ R है वो डाइफर करता है इन यूनिट्स. R इज इक्वल टू 8.314 जूल पर किलो पर मोल. ओके, सो इट डिपेंड्स. ठीक है, कि आप किस में कर रहे हैं. फाइन, सो दिस इज योर करेक्ट आंसर. चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे. Next is a certain gas occupies 200 ml of volume
एट 2 bar pressure at 100 degree Kelvin. वॉल्यूम दिया है, प्रेशर दिया है एंड टेम्परेचर भी दिया है, एक गैस है. हाउ मच वॉल्यूम हमें निकालना है. डज इट ऑक्यूपाई एट 5 bar pressure एंड 200 degree Kelvins. वी नीड टू टेक आउट द वॉल्यूम. A 200 ml, B 160 ml, C 240 ml और D 320 ml. So what is your answer? सी, अगर सबको अभी आइडियल गैस इक्वेशन का फॉर्मूला पता होगा सो आई थिंक आपको क्लियर हो जाएगा. वी हैव P1, V1 एंड T1. वी डोंट हैव V2, वी हैव P2 एंड T2. सो इफ़ यू नो द फॉर्मूला NR इक्वल्स टू, अगर हम सब्सटीट्यूट करें और कंबाइन करें इक्वेशन को, सो यू विल गेट P1 V1 अपॉन T1 इक्वल्स टू P2 अपॉन V2 दैट इज T2, right? So let's take out what we get. Pressure है 2 into V1, that is volume is 200 upon T1. temperature कितना है 100 degree Celsius. That is equal to P2. what is P2? that is 5 into कितना है हमारा V2 हमें निकालना है upon what is the degree Celsius? that is 200. ये तो कट जाएगा, विल गेट 4. ओके, लेट्स पुट ओवर हियर 4 इक्वल्स टू 4 इंटू 200. 5 नीचे आ जाएगा, 5 विल गेट द वैल्यू ऑफ V2, राइट? सो इट इज 160 ml. ओके, सो इफ यू टेक आउट बाय दिस फॉर्मूला you will get your answer. So your correct answer is B 160 ml. Correct? So you need to put out the formula of your ideal gas equation. समझ गए? Let's go to the next question. Who gave the law regarding the partial pressure? A. Charles, B. Dalton, C. Lussac or D. Thomas? So your correct answer is B. Dalton. Okay. Dalton's law of partial pressure ये है, बेसिकली पार्शियल प्रेशर होता क्या है? पार्शियल प्रेशर होता है जो प्रेशर एग्जर्ट किया जाता है इंडिविजुअल जो गैसेस एग्जर्ट करती हैं. ठीक है, जो प्रेशर इंडिविजुअल गैसेस एग्जर्ट करती हैं उसको पार्शियल प्रेशर कहा जाता है. ठीक है, जब एक कांस्टेंट टेम्परेचर हो, सो इट्स फॉर्मूला इज दैट कि जब कांस्टेंट टेम्परेचर और वॉल्यूम हो तो जो टोटल प्रेशर है एग्जर्टेड होता है बाय मिक्सचर ऑफ जो नॉन रिएक्टिव गैसेस होती हैं, वो इक्वल होती हैं किसके? सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर्स के. दैट इज P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4 एंड सो ऑन. ओके, you get it? So it was given by Dalton. Fine. So the question is, which among the following option do you think has the highest average speed? That is chlorine, hydrogen, neon or oxygen, right? तो अगर आपने फॉर्मूला ऑलरेडी पढ़ा होगा, so it comes under your molecular distribution speed. Okay, it's a molecular distribution of speed. Fine. इसको हम मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं. ठीक है, इसमें डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशंस के बारे में बताया गया है एंड देयर हैज़ बीन अ कर्व गिवन फॉर दैट. एक मोस्ट प्रोबेबल स्पीड होती है, एवरेज स्पीड होती है और रूट मीन्स की स्पीड होती है. ठीक है, सो देयर इज़ अ ग्राफ फॉर दैट. ओके, एंड देयर आर डिफरेंट फॉर्मूलाज फॉर इट. व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट एन एवरेज स्पीड, ओके, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है? इट इज़ व्हाट? 8RT अपॉन पाई m. आई गेस दिस इज द फॉर्मूला. ठीक है, वेयर m इज अ मॉलिकुलर मास जो बताया है. ठीक है, व्हाट इज m? मॉलिकुलर मास है, r इज अ यूनिवर्सल कांस्टेंट एंड t इज अ टेम्परेचर. ठीक है,
ओके, सो उन्होंने कहा हाईएस्ट एवरेज स्पीड किसकी होगी, वी नीड टू नो दैट. ओके, लेट्स गो फॉर इट. आई टोल्ड यू कि आर आपका यूनिवर्सल कांस्टेंट है, ठीक है. टी इज योर टेम्परेचर, फाइन, दैट इज इन केल्विन. एम क्या है, मास है इन किलोग्राम्स. ओके, अभी हमें यहाँ से ये तो पता चल रहा है जो एवरेज स्पीड है, ठीक है, जो स्पीड होगी वो क्या है, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, रूट ओवर द मास के. ठीक है, मतलब जो मास है केजी में वो उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है. मतलब जिसका मास स्पीड उसकी जिसकी हाई स्पीड होगी उसका मास उतना ही कम होगा, उसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है. तो बेसिकली मास देखा जाए किसका सबसे ज़्यादा कम है, दैट इज हाइड्रोजन. ठीक है, हाइड्रोजन का मास सबसे ज़्यादा कम है, तो मास इसका सबसे कम है तो उसकी स्पीड सबसे ज़्यादा होगी because it is inversely proportional. So from the formula only you can understand that. So what will be your answer? B, hydrogen will be your answer. Fine, did you get this? Is it easy for you? चलें आगे. Next, what is the mean velocity of 1 mole neon gas at a temperature of 400 Kelvin? ठीक है, आपको फॉर्मूला लगाना है. ठीक है, व्हाट इज, उन्होंने बोला है कि 1 मोल नियॉन दिया हुआ है, उसका टेम्परेचर दिया हुआ है, तो आपको मीन वेलोसिटी निकालनी है. ठीक है, तो अगर मीन वेलोसिटी निकालनी है दैट इज सेम 2RT अपॉन m रूट स्क्वायर. ठीक है, सो यू नीड टू जस्ट पुट आउट द टेम्परेचर फॉर्मूला. यूनिवर्सल कांस्टेंट का आपको पता होगा, 2 एंड मास आपको डालना है ऑफ द नियॉन, दैट्स इट. एंड यू हैव टू टेक आउट द रूट स्क्वायर, यू विल गेट द आंसर. ओके, सो इसका जो इसका मास कितना हो जाता है, दैट इज 0.02 kg. ठीक है, हमें kg में रखना है, दैट इज वाई. टेम्परेचर जो है दैट इज 400 K. ठीक है, आर आपको पता है कितना है, 8.314. ठीक है, सो वाई सब्सटीट्यूट जब आप इन सबको कर देंगे, सो व्हाट विल यू गेट एन आंसर, यू विल गेट योर आंसर एज 11.533 मीटर पर सेकेंड. सो यू कैन सॉल्व दिस. ओके, चले नेक्स्ट. gases dash and occupy all the space that is available to them. A, contract, B, compress, C, expand or D, shrink. So what is your correct answer? Your correct answer is C, expand. जो गैसेस हैं वो एक्सपैंड करती हैं और ऑक्यूपाई करती हैं सारी स्पेसेस जो अवेलेबल होती हैं टू देम. ठीक है, अगर हम देखें जो हमारा नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर जब होता है, ठीक है, तो वहाँ पे कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होती है बिटवीन द गैस पार्टिकल्स, है ना. सो वो उस वक्त क्या करते हैं, वो एक्सपैंड करती हैं और ऑक्यूपाई करती हैं सारी स्पेसेस को. ठीक है, सो दिस इज हाउ इट इज़ गिवन दैट गैसेस एक्सपैंड आउट एंड ऑक्यूपाई कर लेती है सारी स्पेसेस को व्हेन देयर इज अ नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर. फाइन, सो सी इज योर करेक्ट आंसर. करेक्ट. Let's move on to the next question. Collision of gas molecules are dash. A, perfectly elastic. B, inelastic. C, always occur in a proper and predicted motion. और D, non-conserved. जो collision होती है gas molecules की वो क्या है? So correct answer is perfectly elastic. ठीक है, देखो जो टोटल एनर्जी होती है ना बिफोर कॉल्यूजन वो इक्वल होती है टोटल एनर्जी आफ्टर द कॉल्यूजन के. ठीक है, सो इसका मतलब हो गया कि एनर्जी तो एक्सचेंज होती है. ठीक है, एनर्जी एक्सचेंज होगी, पर जो टोटल एनर्जी है
ठीक है, मॉलिक्यूल्स के बीच में एनर्जी ज़रूर एक्सचेंज होगी पर जो टोटल एनर्जी है वो सेम रहेगी. सो इस वजह से दे आर कंसिडर्ड एज इलास्टिक. ओके, नेक्स्ट, there is an increase in the temperature of an object, then the kinetic energy of the object decreases, increases, remains the same, or it is not related to the temperature. अगर एक टेम्परेचर जो है ऑब्जेक्ट का इंक्रीज कर रहा है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? यू नीड टू गिव एन आंसर फ्रॉम दीज 4. ठीक है, फाइन. सो व्हाट इट इज, लेट्स गो इनटू योर काइनेटिक थ्योरी. अब जो काइनेटिक थ्योरी अगर आप देखोगे गैसेस की, उसने कुछ चीज़ें पॉस्टुलेट की हैं और दे हैव टोल्ड अबाउट इट. ठीक है, पहला पॉइंट वो ये कहता है कि गैसेस जो होती हैं वो क्या बनी होती हैं? सिमिलर पार्टिकल्स की बनी होती हैं. किसकी बनी होती हैं? सिमिलर पार्टिकल्स. ठीक है, और ये इतनी स्मॉल होती हैं साइज में कि इनका जो एक्चुअल वॉल्यूम है दैट इज नेग्लिजिबल. ठीक है, एक पहला पॉइंट ये आ गया. फाइन. दूसरा पॉइंट ये है कि नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर पे उसमें कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता बिटवीन द पार्टिकल्स. देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स. फाइन, ये पॉइंट बोला है. देन विल मूव ऑन टू द थर्ड पॉइंट. जो पार्टिकल्स होते हैं गैस के, ठीक है, ये हमेशा कांस्टेंट और रैंडम मोशन में होते हैं. ठीक है, मतलब ये कांस्टेंट और रैंडम मोशन में होंगे, ये कोलाइड करते रहेंगे विद वन अनदर. ओके, एंड जो कोलिजन होता है पार्टिकल्स का विद द वॉल ऑफ द कंटेनर, ओके, ये होता है टोटल प्रेशर कितना एक्सर्ट हुआ है बाय द गैस, जो कोलिजन्स टेक प्लेस करती हैं. ठीक है, और ये जो नेक्स्ट पॉइंट है जो आपका ऊपर भी था कि जो कोलिजन होती है गैसेस की वो टोटली इलास्टिक होती है, जो हमने अभी पढ़ लिया हुआ है. इसका मतलब मैंने अभी बताया कि जो टोटल एनर्जी है मॉलिक्यूल्स की वो सेम ही रहती है बिफोर एंड आफ्टर द कोलिजन. ठीक है, एंड लास्ट पॉइंट यू नीड टू रिमेंबर इज कि कोई भी पर्टिकुलर टाइम पे जो डिफरेंट पार्टिकल्स होंगे गैस के, ठीक है, उनकी डिफरेंट स्पीड्स होती हैं एंड डिफरेंट काइनेटिक एनर्जी होगी. फाइन, इट डज नॉट कैरी द सेम थिंग. ओके, पर जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है स्पीड्स की, ठीक है, जो स्पीड की डिस्ट्रीब्यूशन होगी वो सेम रहती है. अगर इवन जो इंडिविजुअल स्पीड है वो अलग भी हो तो. ठीक है, सो दे हैव गिवन दैट कि जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है ना एक गैस मॉलिक्यूल की, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द गैस के. मैथमेटिकली हम कैसे लिखते हैं कि काइनेटिक एनर्जी पर मोल इज इक्वल टू 3/2 nRT. दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर वेयर R इज द कांस्टेंट एंड N इज द मॉलिक्यूलर मास. ठीक है, ठीक है ना. सो दिस इज द फॉर्मूला. गॉट इट. सो इफ वी सी दिस, तो क्वेश्चन अगर पूछा गया है देर इज एन इंक्रीज इन द, अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो काइनेटिक एनर्जी ऑब्जेक्ट की क्या होगी? हमने कहा कि काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? टेम्परेचर के. तो अगर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है तो टेम्परेचर क्या करेगा? वो भी अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी? इंक्रीज ही होगी. सो बी इज योर करेक्ट आंसर. फाइन, चलें आगे. Next, the temperature of a gas is 100 K. It is heated until it is 200 K then.
What do you understand regarding kinetic energy in this process? It will be halved, tripled, quadrupled or doubled. उन्होंने क्या बोला कि अगर टेम्परेचर जो था गैस का वो 100 K है, ठीक है, और उसको हीट किया अंटिल वो 200 K ना हो जाए, मतलब 100 K था तो उसका डबल कर दिया ये, कि जब तक वो 200 K नहीं हो जाता। तो आपके अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या होगी, हाफ होगी, ट्रिपल होगी, क्वाड्रुपल होगी या डबल होगी? तो हमने क्या पढ़ा है कि काइनेटिक एनर्जी जो होती है, एब्सोल्यूट काइनेटिक एनर्जी, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के, राइट। तो अगर टेम्परेचर डबल हो रहा है, मतलब 100 K से 200 K में जा रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, वो भी डबल होगी। सो डी इज योर करेक्ट आंसर। फाइन, चले नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पोस्टुलेट ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस? हमने अभी पढ़ा है, सो लेट्स सी कि कौन सा नहीं है। ए, द एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ द गैस मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल, ठीक है, इट इज़ ट्रू। हमने अभी पढ़ा है कि जो वॉल्यूम ऑफ गैस होता है वो बहुत नेग्लिजिबल होता है, दिस इज ट्रू। लेट्स सी विच वन इज द रॉन्ग, ठीक है। द काइनेटिक एनर्जी जो होती है गैस मॉलिक्यूल की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर की। अभी इसके 2 क्वेश्चन हमने कर लिए, ठीक है। कॉलिजन्स आर इलास्टिक इन गैस मॉलिक्यूल्स, इस पे भी हमने क्वेश्चन कर लिया। दे आर हाई फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल्स, नो, ठीक है। फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शंस नहीं होती हैं बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ गैस एट नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, ये हमने क्वेश्चन पढ़ा है पर। सो बी इज योर करेक्ट आंसर। सो विच इज द रॉन्ग वन? बी। फाइन, नेक्स्ट। PV upon nRT is known as A, compressibility factor, B, volume factor, C, pressure factor और D, temperature factor। क्या फैक्टर बोला जाता है? So it is called as A, compressibility factor। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर क्या होता है? ये मेजरमेंट होता है डेविएशन फ्रॉम द आइडियल बिहेवियर। जब डेविएशन होती है आइडियल बिहेवियर से तो उसको कहा जाता है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। इसको डिनोट करते हैं हम z के साथ, ओके। सो इट रिप्रेजेंट्स बाय वॉल्यूम ऑफ रियल अपॉन वॉल्यूम ऑफ आइडियल, ओके, फाइन। एंड जो इसका फॉर्मूला है दैट इज गिवन बाय v इक्वल्स टू PV अपॉन nRT, ओके, फाइन। नेक्स्ट, what is a temperature known as where a real gas obeys Boyle's law or as an ideal gas? A, Boyle's temperature, B, charge temperature, C, critical temperature और D, absolute temperature। टेम्परेचर को क्या बोला जाता है जब वो बॉयल्स लॉ ओबे करता है और एज एन आइडियल गैस की जब बात कर रहे हैं? सो व्हाट इट इज कॉल्ड एज? It is called as Boyle's temperature or Boyle's point. Fine. So A is the correct answer. Next, the value of A. Let me just highlight this. The value of A in van der Waal equation is dash dependent on dash. So it is dependent on pressure and volume, temperature and volume, pressure and temperature, independent of pressure and dependent on temperature. So you have to tell that, okay? So what it is? So your correct answer is D. It is independent of the pressure and it depends upon the temperature, okay?
जब लो या मॉडरेट प्रेशर होता है हमारे पास, सो Z इज रिटन एज 1 माइनस A अपॉन VRT. ओके, एक्चुअल जो आपका इक्वेशन है दैट इज जो वैंडर वॉल का जो बेसिकली ओकेशन था, यहाँ पे जो A और B है ना, दीज आर द कॉन्स्टेंट्स. ओके, जो A है दिस इज कंसिडर्ड एज अ अट्रैक्टिव फोर्सेज ऑफ द गैसेस. ठीक है, ये क्या अट्रैक्टिव फोर्सेज है ऑफ द गैसेस. फाइन, तो इसमें it has talked about that. So it is independent of the pressure but it depends upon the volume. Okay, next, what are the units of B in van der Waal equation में जो B की वैल्यू क्या होती है? लीटर पर मोल, लीटर इंटू मोल, 1 per liter मोल और लीटर. So it is a correct answer, that is liter per mole. Okay, so basically unit क्या होती है, that is the volume upon number of moles. Okay, so V upon mole, so that is L upon mole, that is liter per mole. So A is your correct answer. Fine. Which of the following is a critical temperature for carbon dioxide? A 32 degree centigrade, B 30.98 degree centigrade, C 40 degree centigrade और D 30.91 degree Kelvin. क्रिटिकल टेम्परेचर क्या है कार्बन डाइऑक्साइड का? ओके, बिफोर दैट यू शुड नो द लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस. उसी के अंडर ये जो आपका क्रिटिकल टेम्परेचर टॉपिक है, ठीक है, उसमें बोला गया है जब अट्रैक्टिव फोर्सेस जो होती हैं बिटवीन जो मॉलिक्यूल्स है वो इंक्रीज कर जाता है. ठीक है, मॉलिक्यूल्स जो होते हैं गैस के वो क्या होंगे, वो क्लोज आना शुरू हो जाते हैं. ठीक है, एक स्टेज आ जाती है जब जो गैस है ना वो किस में चेंज हो जाता है, लिक्विड में चेंज हो जाता है. इसको कहा जाता है लिक्विफिकेशन ऑफ गैस. फाइन, अब जब हम इसकी बात कर रहे हैं देन वी आर टॉकिंग अबाउट द क्रिटिकल टेम्परेचर. क्रिटिकल टेम्परेचर वो टेम्परेचर है जिसके अबव जो गैस है उसको हम लिक्विफाई नहीं कर सकते. मतलब इस एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के आगे वो फर्दर लिक्विफाइड नहीं हो सकता. सो दैट इज द critical temperature. So critical temperature comes as 8A upon 27 RB. Okay, fine. So you just need to remember it. जो critical temperature है for the carbon dioxide is B 30.98 degree centigrade. Okay, so it plays a crucial role in determining the behavior of the gas under different conditions. Okay, next, which of the following is greater? Boyle's temperature. Boyle's temperature is equal to critical temperature. Critical temperature or Boyle's temperature is equal to 1 upon critical temperature. Fine. So your correct answer is what? आपका करेक्ट आंसर है दैट इज बॉयल्स टेम्परेचर. जो बॉयल्स टेम्परेचर होता है वो ग्रेटर होता है देन द क्रिटिकल टेम्परेचर. क्योंकि जो क्रिटिकल टेम्परेचर होता है ना, ठीक है, वो हाईएस्ट टेम्परेचर कब होता है, जिसमें जो गैशियस स्टेट है स्टार्ट कंडेंस करने लगता है किसमें, लिक्विड स्टेट में. ठीक है, और बॉयल्स टेम्परेचर क्या होता है,
जिसमें जो आपकी रियल गैस है जो ओबे करती है अपनी आइडियल गैस इक्वेशन को, ठीक है, जो एक प्रॉपर प्रेशर रेंज के अकॉर्डिंग चलती है, ठीक है। तो अंडर अगर आइडियल बिहेवियर ऑफ गैस देखें तो हमारी कंडेंसेशन नहीं होनी चाहिए, ठीक है, हमारी कंडेंसेशन नहीं होनी चाहिए। पर जो क्रिटिकल टेम्परेचर है वो क्या शो कर रहा है, नॉन आइडियल बिहेवियर शो कर रहा है। तो इसकी वजह से जो बॉयल्स टेम्परेचर होता है वो ज़्यादा होता है कंपैरेटिवली क्रिटिकल टेम्परेचर के। सो व्हाट इज योर करेक्ट आंसर? ए इज योर करेक्ट आंसर। फाइन, चले नेक्स्ट। A gas that is liquefied by applying pressure below critical temperature is called as dash of the substance. जो गैस जिसको लिक्विफाई किया जाता है प्रेशर अप्लाई करके बिलो द क्रिटिकल टेम्परेचर, उसको क्या कहा जाता है? ए वेपर ऑफ द सब्सटेंस। क्या बोला जाएगा? वेपर ऑफ द सब्सटेंस। फाइन, चले नेक्स्ट। What is the boiling point of pressure at 1 atmospheric known as standard boiling point, normal boiling point, van der Waal boiling point or saturated boiling point? At pressure of 1 atmospheric is known as, that is B, normal boiling point. Okay, fine, चले नेक्स्ट। 1 poise is equal to A 0.1 kg per meter per second. Okay, next 1 kg per meter per second, next 10 kg per meter per second or 100 kg per meter per second. So 1 poise is equal to, your correct answer is A 0.1 kg per meter per second. जो पॉइज है वो यूनिट है किसकी? विस्कोसिटी की। किसकी? विस्कोसिटी की, ठीक है। और इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? न्यूटन सेकेंड पर स्क्वायर मीटर, ठीक है, समझ गए? सो it is 0.1 kg per meter per second. A is your correct answer. Next, viscosity of liquid dash with rise in temperature. Viscosity जो होती है liquid की वो increase करती है, it decreases, remains constant or is independent. ओके, पहले विस्कोसिटी होती क्या है, ठीक है। अभी विस्कोसिटी हो गया रेजिस्टेंस होना फ्लूइड का, ठीक है, रेजिस्टेंस ऑफ अ फ्लूइड दैट इज लिक्विड और गैस की टू चेंज इन अ शेप, कि वो कोई एक चेंज शेप में चेंज ना हो, ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड एज द विस्कोसिटी, और वी कैन से रेजिस्टेंस ऑफ डिफॉर्मेशन। तो विस्कोसिटी जो लिक्विड की है वो इंक्रीज होगी जब हम टेम्परेचर राइज करेंगे, डिक्रीज होगी, कांस्टेंट रहेगी या इंडिपेंडेंट रहेगी? सो जैसे हम टेम्परेचर राइज होगा तो जो विस्कोसिटी है लिक्विड की वो क्या करेगी? इंक्रीज करेगी, जबकि गैस की क्या होगी? डिक्रीज करेगी, ठीक है। जब क्या होता है, जब हमारा टेम्परेचर, जब हम अब लिक्विड्स को बॉईल कर रहे हैं या राइस हो रहा है टेम्परेचर में, तो उनमें क्या होगा? हीट एनर्जी दैट इज थर्मल एनर्जी बहुत हाई होगी, ओके। सो वो ओवरकम कर सकते हैं इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शंस को, ठीक है। सो विस्कोसिटी जो होती है लिक्विड की वो इंक्रीज हो जाती है,
So A is your correct answer. Next, what is the SI unit of surface tension? A. Dyne per meter, B. Newton meter, C. Newton per meter, or D. Dyne meter. ओके, सो जो बेसिकली योर करेक्ट आंसर इज सी, न्यूटन पर मीटर. जो बेसिकली सरफेस टेंशन कैसे डिफाइन किया जाता है, दैट इज 4 पर यूनिट डिस्टेंस. ओके, सॉरी, it is defined as force per unit distance. Okay, so distance force आ गया आपका न्यूटन, that is, और distance आपका आ गया मीटर. So Newton per meter, that is C is your correct answer. Fine. Next, a water drop is spherical in shape due to A. Viscosity, B. Poise, C. Surface tension, or D. Reflection. So water drop की जो हमें spherical shape दिखती है, what is the reason behind it? So it basically occurs due to the surface tension. Okay, so basically जो ड्रॉपलेट्स होते हैं वाटर के, ठीक है, दे आर पुल्ड इन अ स्फेरिकल शेप, ठीक है, बाय द कोहेसिव फोर्सेस. किसकी वजह से होता है? कोहेसिव फोर्सेस ऑफ द सरफेस लेयर की वजह से. दैट इज कॉल्ड एज, दैट इज वाई जो वाटर ड्रॉप की स्फेरिकल शेप होती है. ओके, लास्ट क्वेश्चन, द सरफेस टेंशन ऑफ डैश एट क्रिटिकल टेम्परेचर. जो सरफेस टेंशन होता है ऑफ 1 एट क्रिटिकल टेम्परेचर और एट 2, सॉरी 1, 0, 2 और 3. Fine. Sorry for the question. The surface tension of liquid is dash at critical temperature. Okay. So it is given the surface tension of liquid is dash at the critical temperature. So what it is? It is B, 0 at the critical temperature. Okay. So basically जो surface temperature होता है ना in a fluid, वो अराइज करता है एज अ रिजल्ट ऑफ अनइवन फोर्सेस जब लगते हैं. ठीक है, जब एक टेम्परेचर सरफेस का कब इंक्रीज करता है, ठीक है, वो कब करता है? जब बेसिकली अराइज करता है किसकी वजह से? अनइवन फोर्सेस जब लगती हैं लिक्विड और मॉलिक्यूल के बीच में, और जो सराउंडिंग जो गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में जब फोर्सेस लगती हैं, ठीक है, तो उनकी वजह से फ्लूइड अराइज होता है. ठीक है, पर क्रिटिकल टेम्परेचर पे क्या होता है? ये जो फोर्सेस होती हैं ये इक्वल हो जाती हैं एंड देयरफॉर जो सरफेस टेंशन होता है वो क्या हो जाता है? ज़ीरो हो जाता है. क्या हो जाता है? जो सरफेस टेंशन इट बिकम्स ज़ीरो. फाइन. सो बी इज योर करेक्ट आंसर. So surface tension of the liquid is 0 at critical temperature. Fine. So this is the correct answer, and by this we have finished today's lecture. Next lecture will be of thermodynamics, that is chapter 6. Okay, chapter 6 आपका thermodynamics है. We are going to complete after this one more chapter and then we are going to go back to the biology. ठीक है, सो आई होप प्लीज़ सब पढ़ के आएंगे ये चैप्टर एंड विल डिस्कस द क्वेश्चंस रिलेटेड टू इट.
प्लीज़ इस चैप्टर को अच्छे से करिए. अगेन इस क्वेश्चंस को सबको रिपीट कीजिए so that you get a more clear picture. And next we are going to start with chapter 6, that is thermodynamics. Fine. Please उसको पढ़ के आए so that we can solve the questions. All the very best. Have a nice day. Take care.